So, good evening, everyone. First of all, I would like to introduce myself. I'm Dr. Sunil Kumar Yadav, Assistant Professor, Department of Commerce, Segra SSB College. So today I'm going to discuss about intellectual property rights. Actually, if we say that intellectual property uh, means anything that has been created by your mind. हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैसा एक प्रॉपर्टी है जो हम अपने बुद्धि का उपयोग करके, बुद्धि लगा के हम जिसे हम तैयार करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा पर्सनल, मेरा अपना बुद्धि यूज करके अगर मैं इस तरह का कुछ संपत्ति अगर तैयार करता हूं, जैसे मान लीजिए हमारा बहुत सारा संपत्ति है जो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार और बाइक हुआ, बहुत सारा जो एसेट है वो क्या करते हैं हम अपने मतलब लाइफ टाइम में हम अपने मेहनत से हम उन एसेट को तैयार करते हैं ताकि इन नियर फ्यूचर हम उसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट जिसको कह सकते हैं, जिसे हम ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, बस उसका प्रेजेंस वी कैन ओनली फील। सो intellectual property is an intangible asset that cannot be seen, that cannot be touched, it can only be felt, its presence can only be felt. Okay, so intellectual property is becoming an increasingly important business asset. Intellectual property means innovation in form of copyrights, patent and trademark. Examples of intellectual property includes novel invention, artistic work, literary work, and unique sign pertaining to a company. Protecting intellectual property allows a company to grow by sharing their innovation while maintaining their rights as owner. Business owner must understand the importance of intellectual properties in order to effectively protect the company's assets. The business world is becoming more aware that intellectual property protection is a huge factor for a company's success and value. Investing in intellectual property protection will prevent the key resources of a company from being abused by other or competitor. We can say that intellectual property is anything that has been created by your uh, intelligence, by your unique ideas. So we can say that these are the intellectual properties. So we can say that the business, if any business have huge intellectual properties and more number of intellectual properties than its competitor, then we can say that it could get success in near future and it could also remain in existence for long period of time. So here in this uh, picture, in this figure, it has been shown that the business, if it generates intellectual properties or intellectual properties rights, then it could success in near future. Okay, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एनीथिंग, एनी आइडिया, अ डिजाइन, इन्वेंशन, अ मैन्युस्क्रिप्ट that has been developed by anyone by using their intelligence, by using their wiseness, that ultimately give rise to a useful product and application. सो कह सकते हैं ऐसा कुछ इन्वेंशन, ऐसा कुछ डिजाइन, ऐसा कोई आइडिया हम डेवलप किए हैं जिसका प्रैक्टिकल में यूटिलिटी है और बाद में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, उससे हम गेन कमा सकते हैं. और ऐसा राइट, ये तो हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं. अब हो गया इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पावर देता है, हमें राइट्स देता है, उसे ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं.
अब आ गया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ग्रांटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इट इनहेंस परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन जिसके पास ये आईपीआर होता है उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड बेनिफिट फॉर एफर्ट्स दैट एनीवन यूज्ड in creativity, okay, and also it provide financial benefit. It create healthy competition among researcher and institution, and also it provide return on investment. Actually आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, आपने R&D किया, R&D करके क्या हुआ, आपने जो इन्वेस्ट किया, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया किसी चीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ तो चाहेंगे। और नेक्स्ट हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू लाइसेंसिंग एंड अदर मींस। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, आप रिसर्च डेवलप करने के कारण क्या हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आने के कारण क्या हो रहा है, और ज्यादा वो टेक्नोलॉजी सभी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली सोसाइटी बेनिफिटेड थ्रू द आईपीआर। ओके, नेक्स्ट हो गया। सो दीज आर द लेजिस्लेशन रिगार्डिंग आईपीआर इन इंडिया। सो discussing more. So what are the IPRs? Patent, number one IPR is patent. Next trademarks, next copyright, next trade secrets, industrial design, and GI. Okay, we can say that GI, these are the intellectual properties. Next, first one is patent. Okay, so patent is a right granted by government to an inventor, okay, to an inventor to exclude other from imitating, manufacturing, using, selling in a question of commercial use. Okay, अगर आपने किसी चीज को इन्वेंट किया है, मतलब अभी कुछ दिन पहले हम देखे, जो मान लीजिए अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इस तरह का वैक्सीन वगैरह बहुत सारा कोविड वैक्सीन डेवलप हुआ, तो क्या हुआ, उसका जो फॉर्मूला, उसका पेटेंट, वो जो कंपनी थे उसका पेटेंट करवा के रखे अपने पास, ताकि वैसा उस प्रोसेस से वो इंग्रेडिएंट यूज करके कोई भी कंपनी वो प्रोडक्ट तैयार ना कर पाए। तो पेटेंट किस चीज के लिए दिया जाता है? एक इन्वेंशन के लिए दे सकते हैं, इनोवेशन के लिए दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन हो चुका है, कोई खोज हो चुका है, उसका इन्वेंशन के उसमें इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट हो गया प्रोसेस, नया एक प्रोसेस डेवलप किए हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। अब पेटेंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है? नोवेल्टी, मतलब एक यूनिकनेस होना चाहिए आपके इन्वेंशन में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए और यूजफुलनेस होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी पेटेंट। ओके, और ये पेटेंटेबिलिटी मींस पेटेंट करवाने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन वगैरह भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आप क्या हो सकता है, पेटेंट 20 साल के लिए आपको मिल सकता है। आपने कोई इन्वेंशन किया, उसमें आप अगर पेटेंट करवाना चाहते हैं तो आप जिस दिन फाइलिंग कर रहे हैं उससे 20 साल, नेक्स्ट 20 ईयर के लिए आपको पेटेंट मिल सकता है। नेक्स्ट हो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? मान लीजिए किसी तरह का एक सिंबल है, किसी भी तरह का एक सिंबल, आप कह सकते हैं इस तरह का एक सिंबल रहता है, नाइकी या रिबॉक जो शू है उसका एक अलग सिंबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आप जितना भी यहाँ पिक्चर है आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये जॉन डियर का लोगो है, ये मैकडोनल्ड का लोगो है, ये एंड्रॉयड का लोगो है, ये व्हाट्सएप का लोगो है, ये फेसबुक का लोगो है। एक्चुअली क्या हो रहा है, इसे देख के ये एक अलग टाइप का डिजाइन है, ये स्काइप का लोगो है, ये टाटा का लोगो है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्लेरी, महिंद्रा, वोल्वो,
ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रेडमार्क क्या हो गया, एक स्पेशल टाइप का मार्क है, स्पेशल टाइप का आप कह सकते हैं एक सिंबल है, ठीक है, जिसे देख के हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ समझ सकते हैं, जो देखिए भाई साहब ये एप्पल का लोगो है, ठीक है, ये मान लीजिए मैकडोनल्ड का लोगो है, ये कोका कोला का लोगो लोगो है, ये वोडाफोन का लोगो है, ये लिवाइस का लोगो है। मतलब हम दूसरे प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो ये दूसरा प्रोडक्ट है भाई साहब। और ट्रेडमार्क आपको मिल सकता है मैक्सिमम 10 साल के लिए। ये देख लीजिए यहां पे ये एसबीआई का लोगो है, ये सीसीडी कैफे कॉपी डे, ये हम कह सकते हैं ये जो लोगो है ये एप्पल का लोगो है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये भाई साहब यहाँ पे ये केएफसी है ना, एक चिकन। नेक्स्ट हो गया कॉपीराइट। मान लीजिए कॉपीराइट क्या होता है, मान लीजिए आपने एक म्यूजिक वीडियो बनाया, आपने एक मूवी बनाया, आपने एक ड्रामेटिक वर्क किया, आपने एक आर्टिस्टिक वर्क किया, आपने एक पेंट बनाया, आपने एक साउंड वॉइस क्लिप रिकॉर्ड किया, आपने एक फोटोग्राफ मतलब खींचा है, आपने एक कंप्यूटर का डिजाइन मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाया, कोरियोग्राफी एक डांस स्टेप तैयार किया। तो अब क्या हो सकता है, आप मान लीजिए अपना बुद्धि यूज करके, आप अपना आइडिया लगा के आपने एक नया चीज डेवलप किया है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे जो वो दूसरे कोई भी जो व्यक्ति है XYZ या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है वो आपका आइडिया यूज करके मान लीजिए वो पैसा कमाए। आप चाहेंगे जो ना हमने पहली बार इसको बनाया है तो हमें यहां से कुछ इनकम होना चाहिए, अदरवाइज मेरा बना के क्या फायदा हुआ। तो क्या करेंगे, आप कॉपीराइट ले लेंगे, आप क्या करेंगे उस प्रोडक्ट का कॉपीराइट आप ले लेंगे। आप ताकि कोई भी, अगर आपने देखा है जो रीमेक होता है बहुत सारा मूवी का, हम लोग रीमेक बना रहे हैं, तो रीमेक जब भी बनता है, एक मूवी था वांटेड टाइप, वांटेड नाम का मूवी था, आप कह सकते हैं कि ये मूवी जो भी था ये साउथ का मूवी था, सलमान खान इनके जो हिंदी वर्सन बनी उसमें इन्होंने एक्टिंग किया है। तो ये साउथ का एक मूवी था जिसका क्या हुआ, राइट इन्होंने खरीदा। आपने देखा होगा रेस मूवी आया हुआ था, तो रेस मूवी, पहले रेस मूवी में दूसरे फिल्म एक्टर लोग काम करते थे, दूसरे उसके डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, दूसरा एक कंपनी क्या किया, पूरा रेस का पूरा नेक्स्ट आप कह सकते हैं नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए क्या किया, पूरा कॉपीराइट खरीद लिया और उसके बाद ही बना सकते हैं, अदरवाइज क्या हो सकता है, आपके ऊपर केस बन सकता है। तो कॉपीराइट आपको कितना दिन के लिए मिल सकता है, आपको मिलेगा आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, और आपके ना रहने के बाद आपको, आपके जो लीगल हायर होंगे उनको 60 इयर्स तक मिलेगा। अगर दो आदमी मिलके मान लीजिए एक बुक लिखे हैं, दो ऑथर है, एक ऑथर एक को ऑथर जो भी है, तो क्या होगा ऐसा, मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब लास्ट ऑथर जब तक जिंदा है तब तक, उसके बाद 60 साल तक आपको मिलेगा कॉपीराइट। नेक्स्ट हो गया ट्रेड सीक्रेट। हम कह सकते हैं ट्रेड सीक्रेट सभी जो बिजनेस है उसका एक सीक्रेट है। मान लीजिए आप एक बहुत सारा, मान लीजिए मैकडोनल्ड या KFC या कोका कोला जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका क्या रहता है, एक सीक्रेट रहता है, एक सीक्रेट रेसिपी रहता है, एक सीक्रेट बनाने का तरीका रहता है। तो वो कभी वो रिवील नहीं करते हैं किसी भी कंपनी के। कोई भी कंपनी अपना सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट जो है, जो रेसिपी है या जो फॉर्मूला है, जो मसाले यूज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम देखते हैं जो यहाँ पे पिज्जा हट है, डोमिनोज है, वो लोग क्या करते हैं, उनका इतना सेल है, एक फॉरेन ब्रांड है, वो क्या करते हैं अपना कोई भी ट्रेड सीक्रेट डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और ट्रेड सीक्रेट का जो है क्या, आपके पास जो मतलब प्रोटेक्शन आप होल लाइफ के लिए ले सकते हैं। क्या होता है, जब भी कोई इंप्लॉई मान लीजिए आपके पास काम करता है, या आप उसका इंटरव्यू लेते हैं या उसे जॉब देते हैं, और मान लीजिए बहुत दिन काम करने के बाद वो अगर छोड़ता है, आपका जॉब छोड़ के चला जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, आप क्या करेंगे, उनको उनसे एक बॉन्ड साइन करवा लेते हैं, जो आप मेरा जो कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी मेरा सीक्रेट है मैटर, वो कहीं पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके पास आपसे इतना फाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या, इंडस्ट्रियल डिजाइन। मान लीजिए आप एक कोई डिजाइन बनाए हैं, मान लीजिए आपने एक कार डिजाइन किया है,
मान लीजिए आपने एक जूता क्रॉक्स बोल के एक शू आता है, क्रॉक्स कंपनी, तो क्रॉक्स बोल के एक शू आता है, तो उसका बहुत भी प्राइस ज़्यादा रहता है, मिनिमम 2000 2500 इस तरह का प्राइस रहता है। तो आप कह सकते हैं जो इस तरह का आपने एक डिज़ाइन बनाया है, तो वो डिज़ाइन बनाया है आपने, तो वो चाहेंगे जो वो डिज़ाइन आपने बनाया है, आपका एक आइडिया, एक क्रिएटिव माइंड यूज़ करके आपने बनाया है। हाँ, जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं ये जूते का एक मॉडल है, तो आप चाहेंगे जो आप यूज़ करें और किसी का अधिकार इस पे ना रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस डिजाइन को रजिस्टर कर लेंगे और 10 साल तक आपको इसका राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट हो गया जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या हुआ, जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। आप कह सकते हैं जैसे दार्जिलिंग टी, ठीक है, मान लीजिए, और एक हो गया असम टी, ठीक है, कह सकते हैं आगरे का पेठा बहुत फेमस है। आप कह सकते हैं जो मान लीजिए हम सबसे ज़्यादा देखते हैं अफगानिस्तान में जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे पैदा होता है। तो उस तरह से क्या होता है, पार्टिकुलर एक एरिया का, अगर जैसे मान लीजिए हिमाचल का एप्पल, तो पार्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर उगाया जाता है, इफ एनी वन, एनी पर्सन कल्टिवेट एनीथिंग in that particular area, then that product get GI tag, geographical indication tag, and you can get registration of geographical indication for a period of 10 years. Okay, and till now, as per record of 2023, 432 products in India has got GI tag. Okay, so with this, थैंक यू वेरी मच। दूसरे वीडियो के साथ बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।